Today I am going to revise chapter of history. As you can see on the blackboard also, I have written from trade to territory. First revision test will be from whole syllabus MCQs. So you have to do thorough reading of history books, civics and geography to prepare MCQs. So this lesson starts with the death of Aurangzeb. So MCQ form of questions can be framed. For example, Aurangzeb died in the year 1707. Who was the last powerful Mughal ruler? तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बन सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा was the last. बच्चा यहाँ पे बहादुर शाह जफर भी लिख सकता है, तो दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि मैंने पूछा who was the last powerful मुगल रूलर. पावरफुल वर्ड आ गया मीन्स औरंगजेब. लास्ट है, पावरफुल है तो औरंगजेब. अगर मैं पूछूं who was the last मुगल एम्परर, देन बहादुर शाह जफर. इज इट क्लियर? पावरफुल वर्ड साथ में आएगा तो औरंगजेब. औरंगजेब डाइड इन 1707. ठीक है. एंड बहादुर, अब आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब नियर अबाउट 50 weak successors came on the throne. Their names are not mentioned. And last Mughal emperor was Bahadur Shah Zafar. He was the, and you know it very well that he was the leader of the revolt of 1857. आपको पता भी है. You have read about Bahadur Shah Zafar who in the lesson revolt of 1857. अब आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इंडिया में कौन से ईयर में आई? 1600. ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इंडिया में आई. ईस्ट इंडिया कंपनी. नो व्हाट्स मर्सेंटाइल? मर्सेंटाइल मींस अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट. बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट थ्रू ट्रेड, buying goods at cheap rates and selling them at higher rates. Mercantile means business enterprise that make profit by buying goods at cheap rate and selling them at high rates. So East India Company यही करती थी ना. East India Company bought goods from India at cheap rates and sold them to the European markets at high rates. So East India Company earned huge profits through Indian trade. And here British came as trader. They carried various goods from India, such as India was famous for its cotton and silk textiles, spices of India. There was great demand of spices of India in the European markets. So British came as trader. So East India Company जो थी ना started its trade in Bengal. It started its trade in Bengal. And first factory was set up. इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो थी दैट वाज सेट अप इन 1651. कौन से ईयर में? 1651. ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर. ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट ट्रेडेड विद बंगाल, सेट अप इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन 1651 ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली. अब फरमान मीन्स रॉयल ऑर्डर. मुगल एम्परर औरंगजेब issued फरमान. By this farman, he gave right to trade to company. By this farman, he gave right to trade. Right to trade दे दिया किसे? कंपनी को. Through his farman. Farman means royal order. Who issued farman and who gave trade right to company? Mughal Emperor Aurangzeb. In his last years, वो कहते हैं जब उसकी डेथ होने वाली थी ना औरंगजेब की, लास्ट इयर्स में he issued फरमान. By this फरमान he gave right to trade to East India Company. उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग राइट्स दे दिया. gave trading rights to East India Company. अब ट्रेड, ब्रिटिश जो थे ट्रेड से बैटल्स में कन्वर्ट हो गए. ट्रेड से ब्रिटिश के कह लो कि उनके लालच बढ़ते चले गए. ब्रिटिश वांटेड टू इंक्रीज देयर इनकम. दे फर्स्टली when they traded with India, they had to pay in gold and silver coins, and they were on the view that this would drain the wealth of their country. They were in search of such commodities that they could sell in India, and but in those days there were no crops in England.
British forced Indian peasants to grow indigo and to grow opium. British carried opium to China, earned huge profit through this opium trade, and carried tea from China to their country. And tea became the popular drink of British people in England. Tea उनकी popular drink बन गई. Whereas on the other hand, Chinese became drug addicted. चाइना के लोगों को उन्होंने ड्रग एडिक्टेड बना दिया और अपनी कंट्री में पॉपुलर ड्रिंक ले गए. तो ऐसे वाले ट्रेड करते थे ब्रिटिश, एंड इंडिया से वो बहुत सी गुड्स लेके जाते थे, बट दे वर ऑन द व्यू दैट दिस वुड ड्रेन द वेल्थ ऑफ देयर कंट्री एज दे हैड टू पे इन गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स. तो अब वो कुछ ऐसा करना चाहते थे सो दैट दे कुड प्रोटेक्ट द वेल्थ ऑफ देयर कंट्री. तो फर्स्ट देयर वाज बैटल बिटवीन ब्रिटिश ने, अब ब्रिटिश एंड नवाब्स जो थे, देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ब्रिटिश एंड नवाब ऑफ बंगाल. नवाब जो थे वो ब्रिटिश को, अब राइट टू ट्रेड अगर ब्रिटिश को दिया भी हुआ था, दे डिमांडेड ट्रिब्यूट्स फ्रॉम द ब्रिटिश इन प्लेस ऑफ ट्रेडिंग राइट. उन्होंने कहा कि अगर आप व्यापार करते भी हो इंडिया से तो इन रिटर्न यू हैव टू गिव अस ट्रिब्यूट. उन्होंने ब्रिटिश से ट्रिब्यूट मांगा, एंड उन्होंने साथ साथ ब्रिटिश को अलो ही नहीं किया टू मिंट कॉइन्स, एंड दे डिड नॉट अलो ब्रिटिश टू फॉर द फोर्टिफिकेशन टू एक्सटेंड इट्स फोर्टिफिकेशन करने से भी रोका उन्हें. ब्रिटिश मेड वेरियस फोर्ट्स, किले बनाते थे, आर्मी रखते थे अपनी. तो नवाब्स रिफ्यूज्ड ब्रिटिश, उन्होंने ब्रिटिश से वाले राइट छीन लिए. विच राइट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिंट द कॉइन्स, सेकंड टू एक्सटेंड फोर्टिफिकेशन, उनको किले नहीं बनाने दिए ब्रिटिश को. तो इस वे से अब जो ब्रिटिश थे दे रोट इंसल्टिंग लेटर्स टू द नवाब. अब ब्रिटिश ने इंसल्टिंग लेटर्स लिखनी शुरू कर दी नवाब को. तो दिस बिकेम डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखी, ठीक है. तो ड्यू टू दीज रीजंस देयर वर क्लैशेस बिटवीन नवाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी. इनके आपस में क्लैशेस बढ़ते गए. औरंगजेब गेव देम राइट टू ट्रेड, बट नवाब ऑफ बंगाल जो थे, क्योंकि उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, ब्रिटिश जो थे दे पेड लिटिल वेजेस टू द पीजेंट्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एज दे कैरिड टू ब्रिटेन. तो नवाब ऑफ बंगाल ने ब्रिटिश को उनके राइट्स ले लिए, राइट टू मिंट द कॉइन्स, नॉट टू एक्सटेंड फोर्टिफिकेशन, ऐसा उनको बोला, एंड आस्क्ड देम टू पे ट्रिब्यूट टू द नवाब. तो ब्रिटिश जो थे दे स्टार्टेड राइटिंग, आप कह लो डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स टू द नवाब एंड डिसओबेड द नवाब. ब्रिटिश ने उसे डिसओबे किया. So due to this there were clashes, and clashes के कारण इतने बढ़ गए कि war battles हुई between British and Nawab. First battle took place in 1757 and known as Battle of Plassey. In those days the Nawab of Bengal was, आप बताओ बैटल ऑफ प्लासी किस में हुई? ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला. हुआ सिराजुद्दौला. Sirajuddaulah was Nawab of Bengal in those days. तो ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला में बैटल ऑफ प्लासी हुई. इन दिस बैटल हम कहेंगे कि सिराजुद्दौला के साथ चीटिंग की थी. किसने चीटिंग की थी? उसके एक मिलिट्री कमांडर ने, मीर जफर. मीर जफर ने अपने नवाब के साथ चीटिंग की, एंड ही वाज ऑन द साइड ऑफ ब्रिटिश. उसने ब्रिटिश का साथ दिया एंड चीटेड विद हिज नवाब. मीर जफर वाज द मिलिट्री कमांडर ऑफ, किसका मिलिट्री कमांडर था? बहादुर शाह जफर का. और उसने चीट किया अपने नवाब के साथ. ब्रिटिश वॉन दिस बैटल. अगर वो चीटिंग ना करता, हो सकता है ब्रिटिश ना जीतते. तो ही वॉन दिस बैटल, ब्रिटिश वॉन दिस बैटल. तो अब ब्रिटिश और नवाब ऑफ बंगाल में सेकंड बैटल हुई, वो थी बैटल ऑफ बक्सर. अब ब्रिटिश ने मीर जफर को बनाया पपट नवाब. Mir Jafar became the puppet Nawab, and he had to work according to the wishes of the British, because Mir Jafar ने Battle of Plassey में British की help की. That's why British made him the Nawab of Bengal, and he was the puppet Nawab. But there were clashes between Mir Jafar and British, because when Mir Jafar refused to fulfill the
demands of as the demands of British increased day by day. मीर जफर refused to fulfill such demands. इसने कुछ डिमांड्स पूरी करने से मना कर दिया. तो मीर जफर को ब्रिटिश ने, अब मीर जफर भी बंगाल का नवाब नहीं रहा. मीर जफर was dismissed by the company and Mir Qasim became the Nawab of Bengal. Who became the Nawab of Bengal then? Mir Qasim. Mir Qasim became the Nawab of Bengal. अब ब्रिटिश और नवाब ऑफ बंगाल में सेकंड बैटल हुई, दैट वाज नोन एज बैटल ऑफ बक्सर. बैटल ऑफ बक्सर वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर दिस बैटल टुक प्लेस? दिस बैटल वाज हेल्ड इन 1764. बैटल ऑफ प्लासी वाज हेल्ड इन Battle of Plassey 1757. Battle of Buxar 1764. मीर कासिम एंड कंपनी. तो इस बैटल में मीर कासिम गॉट डिफीटेड, वो हार गया. तो इस हम कहेंगे कि बाद में फिर मीर जफर को इन्होंने नवाब बनाया, बट मीर जफर की बाद में डेथ हो गई इन 1765. अब ब्रिटिश गोट दीवानी राइट फ्रॉम द मुगल एम्परर. ब्रिटिश को अब दीवानी राइट मिल गया मुगल एम्परर से इन 1765. British got Diwani right in 1765. By this right, no, they could collect revenue from the richest province of Bengal. In those days, Bengal was the richest province, and now British got right to collect revenue from the richest province of Bengal. अब ब्रिटिश को फायदे हुए. क्या क्या उन्होंने किया? Diwani allowed them to use the vast revenue resources of Bengal. अब ब्रिटिश ने क्या किया? Now company used revenues to finance its expenses. अब वो क्या करते थे? To purchase cotton, silk from India and maintain company troops. अपने troops की maintenance की उन्होंने, and साथ में उन्होंने बहुत बड़े बड़े forts बनाए and buildings बनाई at Calcutta. अपने offices बनाए at Calcutta. ब्रिटिश ने जितना उन्हें collection होती थी revenue से उन्होंने ट्रेड पे लगाया. उन्होंने कितनी सारी कॉटन टेक्सटाइल जो भी उनको, अब पहले दे हैड टू पे इन गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, अब वो इंडिया का पैसा इंडिया पे ही लगाते थे. दे यूज देयर रेवेन्यू, जो भी उनको रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसको वो ट्रेड पे लगाते, अपने ट्रूप्स की मेंटेनेंस देखते एंड साथ में फोर्टिफिकेशन, एंड दे बिल्ट वेरियस बिल्डिंग्स ऑफिसेस इन कलकत्ता. कलकत्ता में उन्होंने अपने ऑफिसेस भी बनाए. अब कंपनी रूल एक्सटेंड्स. अब कंपनी का रूल आगे आगे बढ़ता चला गया. कंपनी केम एज, आई हैव टोल्ड यू, केम एज ट्रेडर बट बिकेम रूलर. अब हम पहले थोड़ा सा ये करेंगे कि व्हाट हैपेंड फॉर दिस. दे पास वेरियस, हम कहेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स पास किया, एक उन्होंने सब्सिडरी अलायंस पास किया. तो इन दिस वे दे एक्सटेंडेड देयर होल्ड ओवर इंडिया. अब हम पहले ये वाले करेंगे टॉपिक्स, फिर हम आगे. क्यों यूरोपियन कंपनीज जो थी, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया की तरफ क्यों अट्रैक्ट हुई? व्हाई यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया? ऐसी क्या चीज इंडिया में थी जो उन्हें अट्रैक्ट कर रही थी? सबसे पहले तो इन दोज डेज इंडिया वाज नोन एज गोल्डन स्पैरो. तो वेल्थ ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड यूरोपियन कंपनीज टू इंडिया. इंडिया का वेल्थ लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था. इंडिया वाज नोन एज गोल्डन स्पैरो इन दोज डेज. तो वेल्थ ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड यूरोपियन कंपनीज टुवर्ड्स इंडिया. ठीक है. फिर हम कहेंगे इंडिया वाज फेमस फॉर इट्स फाइनर वेराइटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल. इंडिया वाज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस. तो स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल अट्रैक्टेड यूरोपियन कंपनीज टुवर्ड्स इंडिया. ठीक है. फिर हम बताएंगे कि यूरोपियन कंपनीज मेड ह्यूज प्रॉफिट्स. दे बोट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडियन मार्केट्स एट चीप रेट and sold them in European markets at high rates. So due to these reasons, European companies attracted towards India. First of all, तो golden sparrow थी इंडिया, wealth of India उनको अट्रैक्ट करके लाया. Second, हम क्या बताएंगे? इंडिया वाज फेमस. किन चीजों के लिए इंडिया वाज फेमस? कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल. फिर हम कहेंगे स्पाइसेस ऑफ इंडिया आल्सो अट्रैक्टेड यूरोपियन कंपनीज. फिर हम कहेंगे कि they earned huge profits. European companies earned huge profits through Indian trade. They bought goods from India at cheap rates and sold them at high rates in European markets. अभी मैंने ये टॉपिक करवाया, what were the areas of conflict between Bengal नवाब्स and East India Company. ऐसी क्या बात हुई कि नवाब जो बंगाल के थे और ईस्ट इंडिया कंपनी में झगड़े हुए?
सबसे पहले तो बंगाल के जो नवाब से रिफ्यूज टू गिव कंसेशंस टू ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने सबसे पहले तो इनके कंसेशंस बंद किए, जो कि औरंगजेब ने पहले इनको कंसेशंस देने शुरू किए. नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू गिव एनी टाइप्स ऑफ कंसेशंस टू द ईस्ट इंडिया कंपनी. सेकंड, नवाब ने कहा दे डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स, उन्होंने कहा कि आप हमें ट्रिब्यूट दोगे, लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर कंपनीज राइट टू ट्रेड. उन्होंने कहा आपको राइट टू ट्रेड मिला है एंड इन रिटर्न यू हैव टू गिव अस ट्रिब्यूट, आप हमें ट्रिब्यूट दोगे. समझ आई मेरी बात? फर्स्ट ऑफ ऑल नवाब ने इनको कंसेशंस देने से मना किया. नवाब रिफ्यूज टू गिव कंसेशंस टू एनी कंसेशंस टू ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने कहा हम कोई कंसेशंस नहीं देंगे. सेकंड, दे डिमांडेड ट्रिब्यूट, लार्ज, आप कहोगे लार्ज ट्रिब्यूट्स, इन्होंने ज्यादा ट्रिब्यूट्स मांगे कंपनी से. लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, इन्होंने कहा आपको राइट टू ट्रेड मिला एंड इन रिटर्न यू हैव टू गिव अस ट्रिब्यूट्स. ठीक है. फिर इन्होंने उन्हें मिंट कॉइन्स का राइट इनसे छीन लिया. डिड नॉट अलाउ देम टू मिंट कॉइन्स, नवाब्स डिड नॉट अलाउ द कंपनी टू मिंट कॉइन्स, नवाब्स डिड नॉट अलाउ देम टू मेक फोर्ट्स, इन्हें फोर्ट्स किले नहीं बनाने दिए. ठीक है. तो इन रिटर्न ब्रिटिश ऑफिशियल्स या कंपनी ऑफिशियल्स, they wrote disrespectful letters to Nawab and they disobeyed Nawab. So due to these reasons there were clashes between Nawab and East India Company. अब समझ आई ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब में झगड़े क्यों हुए थे? क्या कौन सी चीजें थी जो कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को इंडिया की तरफ खींच के लाई? सबसे पहले कौन सी चीज ने अट्रैक्ट किया? आप बताओगे वेल्थ ऑफ इंडिया. इंडिया वाज नोन एज गोल्डन स्पैरो, तो इंडिया के वेल्थ ने यूरोपियन कंपनीज को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट किया. फिर आप बताओगे इंडिया फेमस था किस किस चीज के लिए? कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल. फिर आप बताओगे स्पाइसेस के लिए भी फेमस था, तो इन चीजों ने भी अट्रैक्ट किया. फिर आप बताओगे कि यूरोपियन कंपनीज बोट गुड्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स एंड सोल्ड देम इन यूरोपियन मार्केट्स एट हाई रेट्स. इन दिस वे दे अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स, दैट्स व्हाई दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया. नेक्स्ट, नवाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी में झगड़े के कारण क्या थे? नवाब ने सबसे पहले तो उन्हें कंसेशंस देने से मना किया. नवाब रिफ्यूज टू गिव एनी काइंड ऑफ कंसेशंस टू द कंपनी. नवाब डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, उन्होंने कहा हमें ट्रिब्यूट दो, बदले में आप व्यापार करते हो हमें ट्रिब्यूट दो. थर्ड, नवाब डिड नॉट अलाउ कंपनी टू मिंट कॉइन्स. फोर्थ, आप बताओगे नवाब जो थे उन्हें फोर्टिफिकेशन करने से मना किया नवाब ने. नवाब डिड नॉट अलाउ कंपनी टू मेक फोर्ट्स, फोर्ट्स बनाने से उन्हें रोका. तो ड्यू टू दिस अब ब्रिटिश ने क्या किया? दे रोट डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स टू नवाब, उन्होंने नवाब को डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स लिखी, उनकी इंसल्ट की. एंड डिसओबेड द नवाब, insulted the Nawab, disobeyed the Nawab. So due to these reasons, there were clashes between East India Company and Nawab. Next, how did the assumption of Diwani benefit East India Company? अब दीवानी राइट से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या क्या फायदे हुए ये बताना हमने. दीवानी राइट जो था ना, दैट वाज बेनिफिशियल फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी. इसमें आप बताओगे by Diwani right, British got the right to collect revenue from the richest province of Bengal. बंगाल से अब वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे. अब उन्होंने इस रेवेन्यू को किस पे लगाया? ऑन इंडियन ट्रेड. दे परचेज्ड गुड्स फ्रॉम इंडिया एंड सोल्ड देम at high rates in European markets. They maintained their troops and they built various offices at Calcutta and they built various forts in India. उन्होंने फोर्ट्स भी बनाए, ट्रूप्स को मेंटेन किया. मींस इंडिया का पैसा इंडिया में अपने और उससे भी प्रॉफिट कमाए. उनका अपनी कंट्री का वेल्थ, इन दिस वे दे प्रोटेक्टेड द वेल्थ ऑफ देयर कंट्री. अपनी कंट्री के वेल्थ को प्रोटेक्ट किया, क्योंकि इंडिया से ही पैसा लेते थे, इंडिया में ही सारा उल्टा प्रॉफिट कमा के लेके जाते थे. ठीक है. दीवानी राइट, दीवानी राइट किस एरिया का मिला? बंगाल का. बंगाल उन दिनों कैसी स्टेट थी? इट वाज द रिचेस्ट प्रोविंस इन दोज डेज. British purchased goods from Indian markets with this money that they collected from revenue. जो वो revenue से पैसा collect करते थे, they spent it to purchase
गुड्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया से गुड्स खरीद के एंड सोल्ड देम एट हाई रेट्स इन यूरोपियन मार्केट्स। दे मेंटेन्ड देयर ट्रूप्स विद दिस मनी, इस पैसे से उन्होंने अपने ट्रूप्स को मेंटेन किया। दे बिल्ट बिग फोर्ट्स इन इंडिया, मैनी फोर्ट्स इन इंडिया, एंड दे, और आप बताओगे, बिल्ट वेरियस ऑफिसेस एट कलकत्ता, वेरियस बिल्डिंग्स एट कलकत्ता। तो कलकत्ता क्योंकि उनकी कैपिटल सिटी थी, दे बिल्ट वेरियस ऑफिसेस, बिल्डिंग्स इन कलकत्ता। तो इन दिस वे, इन द एंड आप ये भी कह सकते हो, इन दिस वे दे प्रोटेक्टेड द वेल्थ ऑफ देयर कंट्री, उन्होंने अपनी कंट्री के वेल्थ को प्रोटेक्ट किया इस दीवानी राइट से। ठीक है, नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। अब ब्रिटिश ने क्योंकि अपना होल्ड जो है वो इंडिया पे और बढ़ाया, अब इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया? सबसे पहले तो सब्सिडरी अलायंस वाज पास्ड, सब्सिडरी अलायंस वाज पास्ड बाय लॉर्ड वेल्लेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेल्लेस्ली ना, एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी। लर्न दीज नेम्स, सब्सिडरी अलायंस वेल्लेस्ली, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी। अब मैं पूछूं परमानेंट सेटलमेंट, यस्टरडे वी हैव डन लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब मैं पूछूं महलवाड़ी सिस्टम, वेरी गुड, लॉर्ड मैकेंजी, भूलने नहीं है ये नाम। अब मैं पूछूं मुनरो सिस्टम, थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड, याद रहेंगे ये नाम? दोज हु आर सिटिंग एट होम लर्न रहेंगे बच्चे ये नेम। लिसन अगेन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सब्सिडरी अलायंस passed by Lord Wellesley. According to the term of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. अब इंडियन रूलर्स के पास क्या नहीं थी? अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रख सकते थे। इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू कीप देयर इंडिपेंडेंट आर्मी। दे वर, उन्हें अब प्रोटेक्शन कौन देता था? दे वर गिवन प्रोटेक्शन बाय द, क्योंकि आर्मी नहीं है तो प्रोटेक्शन कौन दे रहा उन्हें? They were given protection by the company. They had to, in return, they had to give subsidiary forces to the company. उन्हें कंपनी को subsidiary forces देनी थी, and to maintain for the purpose of this protection. अब एक मिनट, Indian rulers were not allowed by this subsidiary alliance. Indian rulers were not allowed to keep their independent army. फिर they were given protection by company. In return, they had to give subsidiary forces to the company. अब होल जो भी खर्चा था subsidiary forces का, किसको देखना था? Indian rulers. They had to pay salaries and the maintenance of the subsidiary forces. So it was very expensive. हम कहेंगे कि बहुत expensive था for Indian rulers. उनको बहुत problems आई इसमें. If they failed to meet the demands of the subsidiary forces, then their territory was snatched by the British. Territory was acquired by the British. उनकी territory British छीन लेते थे. Subsidiary alliance was passed by, किसने पास किया? Lord Wellesley. अब subsidiary alliance के according क्या हुआ था? Indian rulers were not allowed to keep their independent army. They were given protection by, कौन देता था उन्हें protection? Company. They were given protection by, and in return, अब protection मिलनी है तो कुछ तो बदले में देना है, and in return they had to keep subsidiary forces for the British and provided them, and it was too expensive. Subsidiary forces का आपको के maintenance देखना, it was very expensive for the Indian rulers. If they failed to meet the demands of the subsidiary forces, then their territory was acquired by British. तो इस वे से आपने सब्सिडरी अलायंस लिखना। मैं वैसे ही बताती हूँ कि जो इंडियन रूलर्स थे ना, वो अपनी आर्मी नहीं रख सकते थे, इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं होती थी उनकी। वो उन्हें उनकी प्रोटेक्शन उन्हें कौन देता था? कंपनी। बदले में वो आर्मी रखते थे, बट वो आर्मी किसे प्रोवाइड करनी होती थी? कंपनी को। कंपनी की आर्मी रखते थे, मीन्स कंपनी आर्मी का खर्चा नहीं उठाती थी, क्योंकि यूरोपियन सोल्जर्स बहुत एक्सपेंसिव थे रखने तब। तो कंपनी का खर्चा, उस आर्मी का खर्चा किसको देना पड़ता था? इंडियन रूलर्स को। इंडियन रूलर्स को ही सारा कुछ देखना पड़ता था, उनकी सैलरी, सब कुछ। तो अगर वो ये सब कुछ ना कर पाते
तो उनकी टेरिटरीज वर एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश। तो ये था सब्सिडरी अलायंस। Who passed doctrine of lapse? Who introduced doctrine of lapse? Lord Dalhousie. Lord Dalhousie क्या कौन सा सिस्टम लेके आया? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। हम कहेंगे कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश डिफरेंट फ्रॉम इंडियन रूलर्स। इंडियन रूलर्स एंड ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेशन में हमें फर्क बताने हैं कि दोनों की एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या फर्क थे।